Good morning, class. In previous video, we had understand the concept of stress, which is a pattern of responses an organism makes a stimulus event that disturb the equilibrium of and exceeds a person's ability to cope. ठीक है, ये एक ऐसा एक्सटर्नल कुछ इवेंट होता है या सिचुएशन होती है या रिस्पॉन्स होता है हमारा, जिसके बेसिस पे हमारा जो एक मेंटल इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमारी एबिलिटी टू कोप जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, पर्सन्स की एबिलिटी टू कोप. ठीक है, सो दिस इज अ बेसिकली environmental event. Okay, in which we had also understand the concept of stresses and the strain. The word stress is basically derived from the Latin word strictus, which mean tighten or the narrow or the something which is very tighten. Okay, and stresses are events that cause our body to give the stress responses. दैट्स मीन द एक्सटर्नल इवेंट जो इन्वायरमेंटल में कुछ सिचुएशंस या कुछ ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हमारे स्ट्रेस को अराइज करती हैं, दिस इज नोन एज स्ट्रेसर्स. एंड स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज अ बेसिकली अ रिएक्शन. स्ट्रेसर्स के बेसिस पे जो हमारा रिएक्शन आ रहा है, दिस इज अ स्ट्रेन. ओके, सो लेट्स मूव टू अदर टॉपिक. Stress is basically two types, the eustress and the de-stress. Eustress, which is good for your health and which is required for a optimum level of performance, and the de-stress, which is very bad for your physical and the psychological health, and it cause body wear and tear. Now stress has come to be associated with both the causes as well as the responses or the effect. That means stress is sometimes play a role as a cause and sometimes play a role as a effect or the consequences. Okay, so first definition जो stress की दी थी, which was given by Hans Selye. ठीक है, हालांकि उनका जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उससे एग्री नहीं थे, उन्होंने इसको अपोज किया. सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ हैंस सेली. द फादर ऑफ मॉडर्न स्ट्रेस रिसर्च, हैंस सेली, defined stress as the non-specific responses of the body to any demand. That means it is a non-specific responses of our body with the through the demand of the any external conditions. Okay, so that is regardless of the cause of the threat, the individual will respond with the same physiological patterns of reaction. So basically हैंस सेली क्या कहते थे? इट इज़ अ पैटर्न ऑफ रिएक्शन. हमारे फिजियोलॉजिकल पैटर्न जो है रिएक्शन का, इट इज़ अ स्ट्रेस. बेसिकली हैंस सेली ने फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा फोकस किया था एंड ही इग्नोर द कॉग्निटिव एंड द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस. दैट्स वाई इनकी डेफिनेशन जो है, इनका जो व्यू पॉइंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज ही इज़ मोर फोकसिंग ऑन द physiological pattern and physiological aspects of the stress. Many researchers do not agree with this definition as they feel that the stress responses is not nearly as general and non-specific as Selye suggested. So different stresses may produce somewhat different pattern of stress reactions, and different individuals may have different characteristics mode of responses. So you may recall the case of an opening batsman mentioned earlier. ठीक है, in previous section यहाँ पे एक opening batsman वाला case था, in which each of us will see the situation through our own eyes and it is. ठीक है, बेसिकली उस केस में ये था कि आप जो ओपनिंग बैट्समैन है, अगर उसको लास्ट में प्ले करने के लिए बोला जाए, 9th नंबर पे उसे भेजा जाए बैटिंग के लिए, तो वो क्या लेगा? या तो वो उसको पॉजिटिवली लेगा या निगेटिवली लेगा. सो बेसिकली ये उसके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स पे बेस्ड है. ठीक है, सो वही केस था इसका. So our perception of the demand and our ability to meet them which will determine whether we are feeling stress or not. If we can perceive the situation as a stressor and if we can feel stress, only then we can perceive stress. And if we can take it lightly, take it positively, so definitely we cannot feel stress anymore.
So stress is not a factor that resides in the individual or the environment. Instead, it is embedded in an ongoing process. This is not a factor. ये कोई फैक्टर नहीं है जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से हमें डिटरमाइंड हो रहा है. ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है. इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस बेसिकली, and which is ongoing, and that involve individuals transaction with their social and cultural environment. So making appraisals of those encounters and attempting to cope with the issues that arise. Stress is a dynamic mental cognitive state. It is a description in homeostasis or an imbalance that gives rise to a requirement for resolution of that imbalance or restoration of homeostasis. ओके, सो बेसिकली एक स्ट्रेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए आपके बुक में एक डायग्राम दिया हुआ है विच आई कैन मेंशन हियर in the figure 3.1. Psychological meaning of stress, in which first one is cause may be internal or external. कुछ भी हो सकता है. हमारी internal mental process, हमारा thought हो सकता है, हमारी रॉन्ग परसेप्शन हो सकता है, या मे बी इट इज़ एक्सटर्नल, दैट्स मीन इन्वायरमेंटल कोई फैक्टर हो सकता है. एंड उसके बाद क्या होगा, इंटरनल स्टेट. जब हमारा स्टेट हमने कोई कॉज हमें मिला एक्सटर्नल या इंटरनल, उसके बेसिस पे हमारा इंटरनल स्टेट क्या हुआ, दैट इज बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस लीडिंग टू स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस. ठीक है, हमारा बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगा उससे स्ट्रेसेस के टूवर्ड्स. तो वो क्या हो सकती है, या हमारा कोपिंग हो सकता है या डिफेंस हो सकता है. ठीक है, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट या चैलेंज टू बी ओवरकम और इलनेस और स्ट्रेन. या तो हम उसे एज अ चैलेंज लेंगे और उससे इफेक्टिवली हम डील कर लेंगे, अपने स्ट्रेस को इंक्रीज नहीं होने देंगे अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा हमें मिलता है तो. या सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है, हम उसको अगर निगेटिवली ले रहे हैं तो इट्स बिकम ये इन द सम इलनेसेस एंड द स्ट्रेन. या हमें इलनेसेस हो सकती है, हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, हमको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर स्ट्रेन हो सकता है. ठीक है, स्ट्रेन बेसिकली या साइकोलॉजिकल स्टेट. सो दिस इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ स्ट्रेस, किस तरह से स्ट्रेस हमारा फंक्शन करता है, वर्क करता है. इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, या एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लेजारस ने दिया है. लेजारस एंड उनके कलीग्स ने एक थ्योरी दी थी, उनकी कॉग्निटिव अप्रेजल की थ्योरी थी बेसिकली. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे डिटेल में अंडरस्टैंड करना है. सो लेट्स मूव टू द थ्योरी. So according to Lazarus and his colleagues, who is given the theory of cognitive theory of stress, he believed the perception of stress is dependent upon the individual's cognitive appraisal and appraisal of event and the resources available to deal with them. दैट्स मीन हम स्ट्रेस तभी फील करेंगे जब हमारा जो कॉग्निटिव अप्रेजल है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो हमें जो इन्फॉर्मेशन देगा, और उससे डील करने के लिए हमारे पास क्या बेसिक रिसोर्सेज हैं, हम जब हम उसका परसेप्शन करते हैं. दैट्स मीन हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल एंड हमारा हमारे रिसोर्सेज और हमारे पास जो भी चीज़ें हैं अवेलेबल हैं, उनका जो परसेप्शन होगा ये डिसाइड करेगा कि हम स्ट्रेस का परसेप्शन किस तरह से करते हैं, एज ए स्ट्रेसफुल इवेंट करते हैं और एज अ चैलेंज, मतलब उसे पॉजिटिवली लेते हैं. ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेस प्रोसेस based on the cognitive theory of stress proposed by Lazarus and his colleagues is an individual's response to a stressful situations largely depend on the perceived event and how they are interpreted or appraised. लेजारस ने बेसिकली 2 टाइप ऑफ अप्रेजल बताए हैं. ठीक है, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था लेजारस की थ्योरीज का, कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द इवेंट. कॉग्निटिव अप्रेजल ऑफ द इवेंट बेसिकली हमारा प्राइमरी अप्रेजल है. ठीक है, एंड जो हमारा सेकेंड था विच इज़ नोन एज रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद. ठीक है, हमारे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमारे पास कितना स्किल है, कितना हमारे पास रिसोर्सेज है, क्या हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम उस स्ट्रेसफुल इवेंट को डील कर सकते हैं. उसका हमारा जो एक अजम्पशन होता है उसको जो हम अप्रॉक्सीमेटली असेस कर पाते हैं कि हाँ इतना है हमारे पास, इससे हम डील अप कर पाएंगे, तो वो हमारे रिसोर्सेज का जो परसेप्शन है वो हमारा सेकेंडरी अप्रेजल है. ठीक है, इसे 1 by 1 डिटेल में लेते हैं. सो द परसीव इवेंट एंड हाउ दे आर इंटरप्रेटेड or appraised
Lazarus has distinguished between two type of appraisal. Okay, that is primary and the secondary. So first of all, primary appraisal. Primary appraisal basically refers to the perception of a new or a changing environment as positive, neutral or negative. ठीक है, दैट्स मीन जो हमारा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो कि स्ट्रेसेस की तरह रोल प्ले कर रहा है, उसका हम परसेप्शन किस तरह से कर रहे हैं, या पॉजिटिव कर रहे हैं, या निगेटिव कर रहे हैं, या न्यूट्रल कर रहे हैं. सो जब हम उसे पॉजिटिवली ले रहे हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेस है ही नहीं है, हमारे लिए स्ट्रेसर ही नहीं है, खत्म हो जाएगा उसका स्ट्रेसर वाला पॉइंट ही. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव चेंज. ठीक है, जब हम उसे निगेटिव लेंगे तो उसे बेसिकली या हम एज अ हार्म लेंगे, एज अ थ्रेट लेंगे, या फिर एज अ चैलेंज लेंगे. ठीक है, जब हम उसको निगेटिवली परसीव करेंगे. और व्हेन वी आर परसीविंग दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एज अ न्यूट्रल, सो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज देयर इज अ नो रिलेशनशिप. Okay, so this is the third point of view. So basically primary appraisal refers to the perception of a new or a changing environment as positive, neutral or negative. ठीक है, in its consequences. So negative events are appraised for their possible harm, threat or challenges. And harm is the assessment of the damage that has already been done by an event. हार्म्स को अब इसको डिटेल करते हैं. तो हार्म क्या है बेसिकली? हार्म दैट्स मीन द असेसमेंट ऑफ द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन बाय एन इवेंट. उसकी वजह से मतलब हम अगर कोई सिचुएशन आई है तो हम ये असेस करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे कि क्या इससे कितना ज़्यादा डैमेज हो सकता है, कितना पॉसिबल डैमेज इस इवेंट की वजह से, इस सिचुएशन की वजह से हो सकता है. ये हमारा क्या है? हार्म परसेप्शन है. थ्रेट परसेप्शन क्या होगा? थ्रेट इज़ द असेसमेंट ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज. ठीक है, कितना हो चुका है, एक्चुअल डैमेज जितना हो गया या होगा ही, डेफिनेटली होगा, वो हमारा हार्म परसेप्शन है. थ्रेट दैट्स मीन हमारा फ्यूचर जितना हमारा डैमेज होगा, फ्यूचर में उसकी कितने चांसेस है डैमेज होने की, दिस इज हमारा, ये जो हमारा है वो थ्रेट परसेप्शन है. नाउ चैलेंज. So challenge appraisal are associated with more confident expectation of the abilities to cope with the stressful event. ठीक है, चैलेंज अप्रेजल क्या है? बेसिकली associated with more confident expectation of the ability to cope with the stressful event. That's mean आप उसे एक चैलेंज की तरह ले रहे हो, मोर पॉजिटिवली ले रहे हो. इट इज़ अ निगेटिव एस्पेक्ट बट यू आर टेक इट very lightly and in a very positive with a very positive attitude. So this is your challenge perception. Okay, so the potential to overcome an event, even profit from the event. When we perceive an event as stressful, we are likely to make a secondary appraisal. When we are perceive our cognitive appraisal, our primary appraisal on the basis of harm, threat or challenge, so after that we come to the secondary appraisal, which is the assessment of one's coping ability and resources and whether they will be sufficient to meet the harm, threat or challenge of the event. ठीक है, हम अपने कोपिंग एबिलिटीज़ को असेस करते हैं, अपने रिसोर्सेज को असेस करते हैं कि इज़ दैट सफिशिएंट फॉर डीलिंग विद दी दिस पर्टिकुलर हार्म, थ्रेट और दी चैलेंज. क्या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो एबिलिटी है, उतनी सफिशिएंट है इस हार्म से डील करने के लिए, इस थ्रेट से डील करने के लिए, या फिर इस चैलेंज से डील करने के लिए. सो दिस इज़ अवर सेकेंडरी अप्रेजल, जहाँ पे हम इंटरनली अपनी रिसोर्सेज को जज करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को असेस करते हैं कि इज़ दैट सफिशिएंट और नॉट. सो दीज रिसोर्सेज में बी मेंटल, फिजिकल, पर्सनल और सोशल. ये जो रिसोर्सेज हैं ये कैसी भी हो सकती हैं. And if one think one has a positive attitude, health, skill and social support to deal with the crisis, he or she will feel less stressed. And this two-level appraisal process determined not only our cognitive and behavioral responses but also our emotional and psychological responses to external event. Okay, so these appraisals are very subjective and will depends on many factors. Let's see a chart which is given on your book, and this is very important chart, and within this chart I think almost all the concepts of related to stress is covered by Lazarus. Okay, let's see the diagram. See this diagram which is given in your book in figure 3.2.
in which there are stresses that mean event or a situation which is arise our stress level. And the second is personal characteristic, हमारी जो इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, हमारे एटीट्यूड्स, हमारी पर्सनालिटी, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, these are characteristics consider in a personal characteristic. लास्ट इज रिसोर्सेज, हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज है, हमारा रिसोर्सेज अप्रेजल। दैट्स मीन ये जो स्ट्रेसर है जो फर्स्ट हमारी कैटेगरी है इज डिनोट्स द प्राइमरी अप्रेजल, एंड द सेकेंड रिसोर्सेज वाली कैटेगरी जो है दिस डिनोट्स द सेकेंडरी अप्रेजल, एंड द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक इज बिटवीन दीज टू कैटेगरीज। ओके, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेस अप्रेजल, किस तरह से उस स्ट्रेस का अप्रेजल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी अप्रेजल एंड द सेकेंडरी अप्रेजल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसर्स क्या हो सकते हैं, बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल और सोशल। इन्वायरमेंटल दैट्स मीन हमारे इन्वायरमेंट में कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो। साइकोलॉजिकल दैट्स मीन हमारी वे ऑफ थिंकिंग, हमारी ही कुछ थिंकिंग या हमारी ही कोई इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मे बी हमारी ही माइंड से जो हमारा स्ट्रेस है वो जनरेट हो रहा है ड्यू टू एक्सेसिव थिंकिंग, ड्यू टू डेंजरस थिंकिंग, हम कुछ ज़्यादा ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो इट इज़ आवर फॉल्ट कि हमारा साइकोलॉजिकल स्टेट हो सकता है। या सोशल, समटाइम हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी हो सकती है, सोशल कहीं नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि आपको उनको फोर्सफुली फॉलो करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप जो स्ट्रेस फील करते हो इट इज़ आ सोशल स्ट्रेस। ओके, नाउ डायमेंशन, इन्वायरमेंटल या साइकोलॉजिकल या सोशल, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का अगर हम कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन इन तीनों कैटेगरी से निकल के अगर आ रही है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो क्या बहुत हाई लेवल की है या लो लेवल की है, उससे जो स्ट्रेस हो रहा है वो कितना बहुत हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो उसकी इंटेंसिटी कितना है, ड्यूरेशन कितना है, दैट्स मीन टाइम पीरियड कितना है, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो रहने वाली है या वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, द ड्यूरेशन। द कॉम्प्लेक्सिटी, कितना कॉम्प्लेक्स है वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है या बहुत कॉम्प्लेक्स है। प्रिडिक्टिबिलिटी यानी वो सडन है, कुछ ऐसा है जो अचानक से आ गया, या ऐसा है जिसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर थे। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स की प्रिडिक्टिबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज वी नो कि हाँ मुझे देना ही है, एक टाइम पे करना ही है, देना ही है, ठीक है, कोई ऐसा सडन इवेंट नहीं है, तो ये इसकी प्रिडिक्टिबिलिटी हाई है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेसेस। ये स्ट्रेसेस हो सकते हैं, देयर आर 3 टाइप एंड डायमेंशन, दैट्स मीन इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, कॉम्प्लेक्सिटी एंड द प्रिडिक्टिबिलिटी। ना नेक्स्ट कैटेगरी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले फिजियोलॉजिकल में फिजिकल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ कैसी है, ठीक है, अगर हमारी कहते हैं ना फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, तो जब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो आप चीज़ों से डील करने के लिए सफिशिएंट होगे और उसे पॉजिटिवली ले पाओगे, स्ट्रेस से डील कर पाओगे, तो दैट्स मीन योर फिजिकल हेल्थ। सेकेंड ऑप्शन, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड वर्नरेबिलिटी दैट्स मीन द चांसेस ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, हम कितना ज़्यादा उसे उस सिचुएशन में उसे पॉजिटिवली लेके उसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये हमारा है। उसके बाद साइकोलॉजिकल दैट्स मीन आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है, अगर ये नॉर्मल है, अच्छी कंडीशन है, आप हैप्पी पर्सन हो, वेल एडजस्टेड पर्सन हो, तो आप उसे इजीली अच्छे से लोगे। उसके बाद टेम्परामेंट, आपका स्वभाव कैसा है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, हाई टेम्परामेंट है, लो टेम्परामेंट है, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है। उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा है। सेल्फ कॉन्सेप्ट दैट्स मीन इंफॉर्मेशन अबाउट योर ओन सेल्फ, ठीक है, वो आपका कैसा है, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, किस तरह का है। उसके बाद कल्चरल फैक्टर्स, कल्चरल मतलब कल्चरल डेफिनेशंस एंड मीनिंग, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स स्टाइल, बेसिकली आप किस तरह से किसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करते हो ये कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है, तो आप किस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हो, उस कल्चर में किस तरह के रिस्पॉन्सेस के लिए अप्रेजल मिलता है, ठीक है, किस तरह का रिस्पॉन्स का स्टाइल है आपका उस पर्टिकुलर कल्चर में, वो डिपेंड करता है। नाउ रिसोर्सेज, सो देयर आर फिजिकल रिसोर्सेज, जिसमें सबसे पहले मनी, यू हैव मनी, जो लोअर इकोनॉमिक सेक्शन के होंगे वो ज़्यादा स्ट्रेस फील करेंगे इन कंपैरिजन टू हाई सेक्शन, ठीक है, तो मनी आपकी कैसी है, मेडिकल केयर की फैसिलिटीज़ जो है वो कैसी हैं आपकी, वो डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पर्सनल में आपकी स्किल हो सकती है, कोपिंग स्टाइल हो सकती है, दैट्स मीन वट एवर काइंड ऑफ स्किल यू हैव, आपके पास कैसी सफिशिएंट स्किल्स है या नहीं है, आपकी कोपिंग स्टाइल कैसी है, आप चीज़ों से न्यू एनवायरनमेंट से चेंज से किस तरह से डीलअप करते हो, वो आपकी कोपिंग स्टाइल है। उसके बाद सोशल दैट्स मीन आपका सपोर्ट नेटवर्क कैसा है, ठीक है, एंड प्रोफेशनल हेल्प आपको किस तरह की मिल सकती है, नहीं मिल सकती है,
तब ये सारे अप्रेजल आपके सेकेंडरी अप्रेजल में आ जाएंगे। नाउ इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आपका प्राइमरी अप्रेजल होगा, सेकेंडरी अप्रेजल होगा, और इनके बेसिस पे आपका स्ट्रेस के की सिचुएशन का परसेप्शन होगा। कोई भी इवेंट, कोई भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल है या नहीं है, ये आप डिसाइड करोगे ऑन द बेसिस ऑफ these all factors and the primary appraisal and the secondary appraisal। और आफ्टर दैट आपका स्ट्रेस अप्रेजल का मैथड निकल के आएगा, मतलब किसके थ्रू आपका ये अप्रेजल हो रहा है। बेसिकली या तो आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के थ्रू हो सकता है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकता है, इमोशनल रिस्पॉन्स एज वेल एज कॉग्निटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स दैट्स मीन आप या तो आपकी बिहेवियरल रिस्पॉन्स बेसिकली आप देखोगे स्ट्रेस में लोग खाना खाना बंद कर देते हैं। ठीक है, उनको भूख लगना, नींद आना बंद हो जाएगी, ये आपकी बिहेवियरल रिस्पॉन्स हो सकती है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आपकी स्ट्रेस लेवल हाई होगा, एंग्जाइटी लेवल हाई होगा। ठीक है, ये आपकी फिजियोलॉजिकल हो सकती है। इमोशनल रिस्पॉन्स में आपकी सैडनेस होगी, आप बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे। ठीक है, ये आपका इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, आपको हैप्पीनेस नहीं फील होगा। कॉग्निटिव रिस्पॉन्स में आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी इफ़ेक्टेड होगी, आपका परसेप्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो जितनी भी कॉग्निटिव स्किल है बेसिकली उसमें प्रॉब्लम जनरेट होगी ड्यू टू स्ट्रेस। तो ये कॉग्निटिव रिस्पॉन्स हो सकती है आपकी। ओके, so let's look at the detail part of this chart. So these appraisal, that means the primary and secondary, are very subjective and will depend on many factors. One factor is the past experiences of dealing with such a stressful condition. If one has handled similar situations very successfully in the past, they would be less threatening for her or him. Another factor is whether the स्ट्रेसफुल इवेंट इज परसीव्ड एट कंट्रोलेबल। ठीक है, अगर ये कंट्रोलेबल हम इसे परसीव करेंगे दैट्स मीन हम इसे पहला पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर आपको एक्सपीरियंस है उस स्ट्रेस का, इफ़ यू फील वेदर इन टाइम, अगर आपने कभी उसे फील किया हुआ है, तो अगर सेकेंड टाइम आप उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी कोपिंग एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोल, अगर आपको लगता है कि दिस सिचुएशन इन योर हैंड, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, आप उसे डिक्रीज कर सकते हो या उससे डील कर सकते हो, तो ये आपकी कंट्रोलेबिलिटी होगी। दैट इज वेदर वन हैज़ मास्टरी और कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन। अ पर्सन हु बिलीव दैट ही और शी कैन कंट्रोल द ऑनसेट ऑफ अ नेगेटिव सिचुएशन और इट्स adverse consequences will experience less amount of stress than those who have no such sense of personal control। अगर आपके अंदर पर्सनल कंट्रोल का सेंस होगा दैट्स मीन आप उसे जल्दी कम स्ट्रेसफुल इवेंट के रूप में परसीव करोगे। Okay, for example, a sense of self-confidence or efficacy can determine whether the person is likely to appraise the situation as a threat or a challenge। ठीक है, दैट्स मीन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपकी सेल्फ एफिकेसी डिटरमाइन करेगी कि आपका अप्रेजल उस सिचुएशन को एज अ थ्रेट होगा या एज अ चैलेंज होगा। सो दस द एक्सपीरियंसेस एंड द आउटकम ऑफ अ स्ट्रेसेस मे वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। सो बेसिकली इन सारे पॉइंट में, क्योंकि देयर आर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, सो दिस डिसाइड कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। हर सिचुएशन का जो इंडिविजुअल परसेप्शन कर रहा है वो उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होगा। एक ही सेम सिचुएशन का अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरह से परसेप्शन करेंगे। स्ट्रेस का जो अमाउंट होगा, स्ट्रेस का को परसेप्शन का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा डिफरेंट इंडिविजुअल्स में। Okay, so thus the experience and outcome of a stresses may vary from individual to individual. So stress include all those environmental and personal events which challenge or that threaten the well-being of a person. These stresses can be external, such as environmental, for example, noise, air pollution; social, that means break up with a friend or loneliness; or psychological, that means conflict, frustration, and within the individual। अभी हम इस पॉइंट पे हैं, दिस डायमेंशन वाले पॉइंट पे, टाइप्स एंड डायमेंशन स्ट्रेसेस। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेसेस। सो देयर आर इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। सोशल दैट्स मीन ब्रेकअप और विद अ फ्रेंड और लोनलीनेस। और साइकोलॉजिकल क्या हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रस्ट्रेशन विद इन द इंडिविजुअल। एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन दैट मीन द फिजिकल कंडीशन, बेसिकली द नॉइज, द एयर, द पोल्यूशन, द वेदर। ओके, so very often these stresses result in a variety of stress reactions which may be physiological, behavioral, emotional and cognitive।
देखिए, तो इसके बेसिस पे आप कहाँ पे आओगे, स्ट्रेस अप्रेजल, लास्ट वाला पॉइंट जो है हमारा, किस तरह से अप्रेजल होगा, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल और मे बी कॉग्निटिव. Okay, so at the physiological level, arousal play a key role in stress related behavior. फिजियोलॉजिकल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अराउजल लेवल हमारा काफ़ी हाई होगा. द हाइपोथैलेमस इनिशिएट एक्शन अलॉन्ग टू pathway. The first pathway involves the automatic nervous system. The adrenal gland release large amount of catecholamine and epinephrine or non-epinephrine into the blood stream, and this leads to physiological changes seen in fight or flight responses. And the second pathway involves the pituitary gland, which secreted the uh, corticosteroid, which is known as cortisol, and which provides energy. So the emotional reaction, so this is the psychological reaction. Okay, psychological reaction, that's mean the internal हमारी जो बेसिकली सिंपेथेटिक एंड पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो रोल होगा वो होगा. सम हार्मोन्स आर रिलीज्ड एंड we feel some kind of emotional feelings and the flight and fight actions. Okay, now emotional reaction हमारा क्या हो सकता है. Emotional reaction to experience of stress include negative emotions such as fear and anxiety, embarrassment, anger, depression or even denial. So the behavioral responses क्या होगी, behavioral responses में क्या हो सकती है, are virtually limitless, dependent on the nature of the stressful event, confirmative actions against the stresses like fight or withdrawal from the threatening event like flight, and the are two general categories of behavioral responses. Okay, that's mean the fight or the flight. या तो आप उसे बिल्कुल escape कर रहे हो, भाग रहे हो, या फिर आप उसे डील कर रहे हो. ओके, द कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज क्या हो सकती है. कॉग्निटिव रिस्पॉन्सेज इंक्लूड beliefs about the harm or threat an event poses and believe about its causes and controllability. Okay, so these include responses such as inability to concentration and intrusive, repetitive or morbid thoughts. ठीक है, so these are the cognitive responses. So as indicated in this figure, the stresses which people experience also vary in terms of intensity, that's mean low or high, duration, that's mean short time or the long time, complexity, less complex or more complex, and predictability, that's mean unexpected or the predictable. So the outcome of stress depends on the position of a particular stressful experiences along these dimensions. ठीक है, दैट्स मीन जो टाइप्स हमारे हैं उसमें किस टाइप के आ रहे हैं, या फिर हमारा जो डायमेंशन है वो किस तरह से आ रहा है. So usually more intense, prolonged or chronic or complex and unanticipated stresses have more negative consequences. ठीक है, जिनकी इंटेंसिटी भी हाई होगी, ड्यूरेशन भी लॉन्ग है, कॉम्प्लेक्स भी हैं, अनप्रडिक्टेबल हैं, तो दैट्स मीन उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा निगेटिव और निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में होगा, और वहाँ पे हमारा स्ट्रेस लेवल जो हम परसीव कर रहे हैं, स्ट्रेस परसीव कर रहे हैं, वो हाई होगा. And the less complex and expected less stress. So an individual experience of stress depend on the physiological strength of the person. Thus individual with poor physical health and a weak constitutions would be more vulnerable than would be those who enjoy good health and strong constitution. ठीक है, दैट्स मीन हमारा फिजियोलॉजिकल हेल्थ जो है, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, वो भी डिटरमाइन कर रहा है इसे. Psychological characteristics like mental health, temperament and self-concept are relevant to the experience of stress. And the cultural context in which we live determines the meaning of any events and defines the nature of responses that is expected under. So finally, the stress experience will be determined by the resources of the person, such as money, social skills, coping style, support network, etc. So all these factors determine the appraisal of a given stressful situation. Okay, so these are the whole concept given by Lazarus and his colleagues. And basically the next topic is our sign and symptom. In this diagram we can also cover the
causes of stress, the reaction of stress, the types of stress, the sign and symptoms of stress. That's mean we cover all the things in one diagram. But after that we had explained some more things. Okay, so in next video we can discuss about the sign and symptoms of stress and the types of stress. Okay class, thank you.